Hello everyone, welcome back. In this video, we are going to discuss a question from entomology, that is from year 2022. So this question was asked in 2022 and this question is for 20 marks. This question is for 20 marks and the question is regarding methods of pest control. So let us look at the question. So the question is, describe the various methods of pest control. Various methods of pest control with appropriate examples. Now explicitly they have asked in the question to write the appropriate examples. So without examples, if you write the answer, marks will be deducted. So examples compulsory हैं because explicitly दिया हुआ है, right? Now let us see how we need to approach the question. So obviously first you have to give some introduction, थोड़ा सा introduction देना बनता है, alright? So here the question is regarding methods of pest control. So we will give the introduction regarding integrated pest management, because when you use these different components to manage the pest, it is called integrated pest management. So we are talking about insect pest. Now broadly, if you define the definition of pest broadly, any organism which causes harm to humans economically or to human health can be considered as pest. So broad definition है वो. But in agriculture, when we say pest, we define it bit narrowly. That is, when we say pest, हम लोग insect pest की बात करते हैं. Otherwise, integrated disease management. So diseases, जब वो fungus या bacterial पेस्ट आते हैं तो हम लोग डिजीजेस बोल के स्पेसिफिकली टर्म यूज करते हैं. सो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, अलग अलग टॉपिक्स हैं. सो यहाँ पर हम लोग इंसेक्ट पेस्ट की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पर पेस्ट का जो डेफिनेशन है वो नैरोली डिफाइन किया हुआ है. सो लेट अस गिव सम इंट्रोडक्शन फर्स्ट. क्या इंट्रोडक्शन है? विल राइट द कॉन्सेप्ट अबाउट इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. सो बेसिकली इट इज इम्पॉसिबल to kill each and every insect, and it is not necessary also. ये ज़रूरत भी नहीं है, because if you completely eliminate one species, so तुम्हारा food web जो है, तुम्हारा food chain या food web जो है, that will be disturbed, right? So it is not necessary to kill each and every individual of the pest population, nor it is advisable और necessary भी नहीं है. Possible भी नहीं है, necessary भी नहीं है. What we need to do is we have to maintain the pest population below economic threshold level. Economic threshold level से हमको population को नीचे रखना है, because if it goes beyond that, there will be economic loss. Economic threshold level से अगर ऊपर जाता है population, there will be irreversible economic loss, right? So हमारा main goal क्या है? Economic threshold level से population को नीचे रखना है. That is our main goal. Here हम लोग और ETL क्या है उसके अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, because our main question is regarding different methods. We have to explain the different methods. Now let us give a classification of different methods of pest control. So different methods में cultural method आएगा. So you have cultural method of pest control. Then you have mechanical methods, physical methods, biological methods, legal methods, and chemical methods. So different methods of pest control. So cultural methods में cultural practices. So sowing time को alter करना, right? और choosing resistant varieties. So intercropping करना या फिर हमारा crop rotation करना. So by changing the cultural practices a bit, we can avoid the contact of susceptible stage of the host and pest, virulent stage of the pest. Then mechanical methods में hand picking या mechanically तुम bushes को हिलाओगे so that the larva will fall, you can hand pick them. Then physical methods में environment को manipulate करना, so you can increase the temperature. Stored grain pest में you can go for modification of storage conditions, like you can increase the concentration of carbon dioxide or decrease the oxygen pressure, right? Heating, those things. Then biological methods is using a living organism to control the pest. So it can be a pathogen, bacteria, fungal pathogen, or it can be a nematode, it can be another insect,
देन लीगल मेथड्स में क्वारंटीन, सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वारंटीन तुम्हारा आता है, व्हाट आर द डिफरेंट statutes which govern the quarantine in India, उसके बारे में थोड़ा सा with example if possible. Then chemical methods में use of synthetic pesticides. So this is the general classification. ये तुमको एक, अगर तुम starting में दे दोगे तो then the examiner knows, okay, he knows. कभी कभी बहुत लोग क्या करते हैं, लीगल वाले को स्किप कर देते हैं या फिर ये भूल जाते हैं. सो अगर तुम पूरे दे दोगे डिफरेंट मेथड्स जो हैं, देन द एग्जामिनर विल बी बिट satisfied एट द बिगिनिंग. शुरू में ही वो satisfy हो जाएगा, ओके इसको सारे एंगल्स पता है. नाउ वी कैन गो फॉर इंडिविजुअल मेथड, एक्सप्लेनेशन फॉर इंडिविजुअल मेथड. हम लोग इंडिविजुअल मेथड का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, राइट. सो कल्चरल मेथड्स, let us begin with the cultural methods of pest control. So manipulation of cultural practices at an appropriate time for reducing or avoiding pest damage to the crops is known as cultural control. So cultural method का definition तुमको देना पड़ेगा. So manipulation of cultural practices, changing the date of sowing, जो तुम टिलेज कर रहे हो प्रॉपरली करो, क्लीन कल्टिवेशन करो विदाउट एनी वीड्स नियर योर एग्रीकल्चरल प्लॉट्स. तो इस तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं वो सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस के नीचे आएंगे. द कल्चरल प्रैक्टिसेस मेक्स द एनवायरनमेंट लेस फेवरेबल फॉर द पेस्ट एंड मोर फेवरेबल फॉर इट्स नेचुरल एनिमीज. तो पेस्ट के जो नेचुरल एनिमीज हैं उनके लिए ज्यादा फेवरेबल बनाता है एंड पेस्ट के लिए कम फेवरेबल बनाता है. नाउ एग्जांपल्स, ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स. तो मैंने तो बस यहाँ पर हेडिंग दिया है, अगेन यू हैव टू गिव. सो प्रॉपर प्रिपरेटरी कल्टिवेशन, दैट मीन्स प्रॉपर टिलेज ऑपरेशन. सो व्हेन यू गो फॉर डीप टिलेज ड्यूरिंग समर, जो भी तुम्हारे प्यूपा हैं, जो भी रेस्टिंग स्टेजेस हैं इंसेक्ट्स के, दे विल बी एक्सपोज्ड आउटसाइड. सो यू माइट हैव सीन बर्ड्स बिहाइंड द ट्रैक्टर्स, दे विल बी पिकिंग द इंसेक्ट्स. सो भी जो प्यूपा हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे, फंगस विल बी एक्सपोज्ड. सो ऑल द पेस्ट विल बी एक्सपोज्ड टू द स्कॉचिंग सन, दैट विल किल द insect pest. Then clean cultivation, that is sometimes insect pest, they complete the life cycle or they overwinter on the weeds when the main crop is not available. जब main crop available नहीं होता है वो weeds के ऊपर survive करते हैं, and as soon as the main crop becomes available they will come to the field, they will attack the main crop. Then systematic cutting and removal of infested parts. सो प्रूनिंग हम लोग करते हैं पेस्ट इन्फेस्टेड प्लांट्स या प्लांट पार्ट का, हम लोग ब्रांचेस को उनको काट के निकाल देते हैं. इफ द एंटायर प्लांट इज अफेक्टेड, पूरे प्लांट को अप्रूव कर देते हैं. सो दोज मेथड्स. देन क्रॉप रोटेशन. सो क्रॉप रोटेशन इज अनदर मेथड वेयर वी ग्रो द क्रॉप्स विच आर नॉन होस्ट फॉर द पेस्ट. सो नॉन होस्ट क्रॉप्स, डिफरेंट फैमिलीज के क्रॉप्स को रोटेट करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि पेस्ट का पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगा. अगर होस्ट अवेलेबल होगा तो पेस्ट पॉपुलेशन भी मल्टीप्लाई होता रहेगा. देन मिक्स्ड क्रॉपिंग. सो अगर एक क्रॉप डैमेज होता है तो एटलीस्ट दूसरा वाला तुमको इकोनॉमिक यील्ड देगा. सो रिस्क मैनेजमेंट. सो एडजस्टिंग प्लांटिंग और सोइंग और हार्वेस्टिंग टाइम्स टू अवॉइड द पेस्ट. सो बेसिकली द विरुलेंट स्टेज ऑफ पेस्ट एंड ससेप्टेबल स्टेज ऑफ होस्ट शुड नॉट कोइंसाइड. अगर वो ससेप्टेबल होस्ट और विरुलेंट पेस्ट कोइंसाइड होंगे तब तुम्हारा इकोनॉमिक डैमेज ज्यादा होगा. ट्रैप क्रॉपिंग, जैसे मैरीगोल्ड को यूज करते हैं हम लोग टोमेटो में. सो ट्रैप क्रॉप कैन बी यूज्ड. मस्टर्ड यूज करते हैं कैबेज में टू ट्रैप द डायमंड बैक मॉथ. सो मैरीगोल्ड को यूज करते हैं टोमेटो में टू ट्रैप द हेलिकोवर्पा. ओके, टोमेटो फ्रूट बोरर. फ्लडिंग इन द फील्ड, व्हेन यू फ्लड द फील्ड, हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट कर रहे हो तुम, सारे मैक्रोपोर्स एंड माइक्रोपोर्स विल बी फिल्ड विद वाटर. तो इंसेक्ट स्टेजेस जो सॉइल के अंदर हैं दे विल बी, आई मीन ऑक्सीजन उनको नहीं मिलेगा एंड हाइपोक्सिया से मर जाएंगे. देन प्लांटिंग रेसिस्टेंट वेराइटीज. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कल्चरल मेथड. रेसिस्टेंट वेराइटी ग्रो करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुमको और कोई मेथड की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इफ यू ग्रो रेसिस्टेंट वेराइटीज दे विल बी फ्री फ्रॉम पेस्ट. So that was cultural method. Now appropriate example एक दे देना, कहीं पर भी हो सकता है तो otherwise expand these. So कहीं पर insect pest का, जैसे मैंने हेलिकोवर्पा का एग्जांपल देखा, ट्रैप क्रॉप का, जगह जगह पर सी बहुत ज्यादा दोगे तो भी 250 वर्ड्स में नहीं हो पाएगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. So at least at few places give the examples. Now mechanical methods में reduction or suppressing of insect pest population by means of manual devices. So हाथ से खुरपी लेके
हम लोग सॉइल को अब वो करते हैं, या फिर तुम हैंड पिकिंग कर रहे हो, ओके। प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव बैरियर्स, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम्हारा रेड हेरी कैटरपिलर है, सो रेड हेरी कैटरपिलर जो है एम्सैक्टा अल्बिस्ट्रा रहेगा, सो दे मूव फ्रॉम वन ग्राउंडनट फील्ड टू अदर ग्राउंडनट फील्ड, एक ग्राउंडनट फील्ड से दूसरे ग्राउंडनट फील्ड में वो मार्च कर, दे स्वॉर्म, एक साथ झुंड में, आर्मी वॉर्म्स भी बोलते हैं, वो एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में जाते हैं। सो व्हाइल दे आर क्रॉसिंग, हम लोग अगर दो प्लॉट्स के बीच में पिट्स बना के उस पिट में अगर पेस्टिसाइड डालेंगे तो दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द पेस्टिसाइड एंड दे विल बी किल्ड। और अदरवाइज जैसे तुम्हारे रोडेंट्स हैं, ओके, स्क्वेरल्स हैं, दे कैन डैमेज द कोकोनट, तो हम लोग क्या करते हैं, रैट्स, स्क्वेरल्स, तो हम लोग टिन का बैंड लगाते हैं कोकोनट के स्टेम के चारों तरफ, सो दैट दे कैन नॉट क्लाइंब इजीली, ओके, स्लिपरी होगा। So there are several methods in mechanical pest control methods. So hand picking करो, provision of preventive barriers, right? Extraction of rhinoceros beetle with the help of iron hook. So इस तरह का एक iron hook होता है। So rhinoceros beetle को मार के, so they स्टे एट द क्राउन रीजन, सो एक बंदा ऊपर चढ़ के आयरन हुक से उसको मार के निकालता है। सो यूज ऑफ अल्कालिथीन बैंड अराउंड द ट्री ट्रंक्स ऑफ मैंगो टू चेक द माइग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंस्टार निम्फ ऑफ मीलीबग्स, जिसको ट्रायंगुलिन बोलते हैं बेसिकली, दैट इंस्टार। सो व्हाट दे डू इज, वो सॉइल से उनका एग्स हैच होता है, सो एग्स विल बी हैच्ड एंड दीज फर्स्ट इंस्टार निम्फ विल क्रॉल ऑन द स्टेम एंड रीच टू द टॉप सॉफ्ट पार्ट्स। तो अगर वो स्टेम के ऊपर से जब जा रहे होते हैं, तो इस तरह से, तो टॉप में जाके वो अटैच होते हैं, सो दे क्रॉल थ्रू द स्टेम। अगर यहां पर तुम एक पॉलिथीन शीट लगा के चारों तरफ से ग्रीज लगा देते हो तो वो चिपक जाते हैं, वो ऊपर नहीं जा पाते, सो दे आर नॉट एबल टू क्लाइम टू द सॉफ्ट पार्ट्स। सो इनका जो माउथ पार्ट्स हैं दे आर टेंडर, सो दे गो टू द सॉफ्टेस्ट पार्ट्स, नया नया जो अभी तुम्हारा ट्विग्स आया है, न्यू लीव्स आया है, वहां पर जाके ये अटैच होते हैं। सो दे हैव टू क्रॉल टू द टॉप, पर यहीं पर बीच में चिपक जाएंगे। सो शेकिंग ऑफ द प्लांट्स एंड कलेक्टिंग द लार्वा, तुम ऐसे शेक भी कर सकते हो प्लांट्स को। सो दोज आर मैकेनिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड में तुम कंडीशंस को, फिजिकल कंडीशंस को मैनिपुलेट करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करना। सो यूज ऑफ फिजिकल फोर्सेस टू किल द पेस्ट, सो यूज ऑफ हाई टेम्परेचर, स्टीम स्टेरिलाइजेशन of soil to kill the soil insects, oxygen stress or high concentration of carbon dioxide during the storage grain pest को, irradiation, so male sterile technique जो है irradiation यूज करते हैं, light traps अगर यूज कर रहे हो, pheromone traps, but pheromone जब यूज कर रहे हो तो वो थोड़ा सा अलग मेथड में आता है। so light traps, so these are physical methods, so थोड़ा सा expand on these, राइट, उनको थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हो, इंडिविजुअल को एक एक लाइन लिख सकते हो, ऑक्सीजन स्ट्रेस एंड ऑल दोस। नाउ लीगल मेथड्स में यू हैव टू मेंशन अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन क्या होता है, डिफाइन क्वारंटाइन, क्वारंटाइन को डिफाइन भी करो, एंड इंडिया में कौन से लॉस हैं जो क्वारंटाइन को गवर्न करते हैं। तो पहले जो था बिफोर 2003 डिपा वाज देयर, सो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914। उसके बाद 2003 से प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया ऑर्डर 2003, नाउ दिस इज इन फोर्स। सो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, अभी ये फोर्स में है। सो प्लांट क्वारंटाइन इंडिया में इट वर्क्स अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ। नाउ बायोलॉजिकल कंट्रोल, लीगल मेथड्स में तुम थोड़े से एग्जांपल दे दो इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वारंटाइन का। सो इंटरनल क्वारंटाइन कौन से पेस्ट के लिए है, एक्सटर्नल क्वारंटाइन कौन से पेस्ट के लिए है, एक दो एग्जांपल्स। Then biological control. So successful management of the pest by means of other living organisms. These can be other insects, these can be pathogens, predators, okay, that is encouraged and disseminated by man. Nature में already होता है, तो वो natural control है, natural control is happening naturally, but ह्यूमन इंटरवेंशन यहां पर इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेचर के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, वी आर ऑगमेंटिंग द पॉपुलेशन और वी आर एडिंग मोर पॉपुलेशन सो दैट पेस्ट कैन बी मैनेज्ड वेरी क्विकली। सो यहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। सो
यूज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स टू मैनेज द पेस्ट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैनेजमेंट. बट यहां पर जो है मल्टीप्लीकेशन बाय आर्टिफिशियल मीन्स एंड डिसेमिनेशन बाय मैन विथ हिज ओन एफर्ट्स इंस्टेड ऑफ लीविंग इट टू द नेचर. तो यहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन हैज इंपॉर्टेंट पार्ट. तो यहां पर ह्यूमन मल्टीप्लाई करके आर्टिफिशियली उनको छोड़ रहा है नेचर में. ऑर्गेनिज्म है, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर कंट्रोलिंग द पेस्ट, बट ह्यूमन इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो यहां पर वो जरूर मेंशन करना. नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स हियर, सो वी कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट पैरासिटॉइड्स. तो हम लोग एग स्टेज का एक एग्जांपल दे देना, ट्राइकोग्रामा जैसे लार्वल स्टेज एंड प्यूपल स्टेज का एक एग्जांपल. देन इंसेक्ट प्रेडेटर्स में लेडी बर्ड बीटल्स का एग्जांपल दे सकते हो तुम. देन इंसेक्ट पैथोजेंस में बैक्टीरिया, बीटी का एग्जांपल दे देना. फंगई बहुत सारे हैं, राइट. वायरसेस, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरसेस, ग्रैनुलोसिस वायरसेस, नेमाटोड्स, एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड्स. सो स्टीरिया रिमेटिडे, हेटेरोरैबिडिडे जो फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका नाम. सो एग्जाम्पल्स कंपल्सरी देना है. एग्जाम्पल्स के बिना तुम्हारे हाफ ऑफ द मार्क्स कट जाएंगे. इफ यू डोंट गिव द एग्जाम्पल्स आधे मार्क्स ही मिलेंगे तुमको, मैक्सिमम आधे मार्क्स मिलेंगे. सो आउट ऑफ 20 मैक्सिमम यू विल गेट 10 अगर एग्जाम्पल्स नहीं लिखें. इफ यू गिव प्रॉपर एग्जाम्पल्स एट डिफरेंट प्लेसेस यू विल गेट एटलीस्ट 15-16 मार्क्स तुमको आराम से मिलेंगे अगर तुमने अच्छे से एग्जाम्पल्स दिए हैं तो. देन केमिकल कंट्रोल में यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स एंड हियर एटलीस्ट सो ऑर्गेनिक कार्बामेट से 1-2 पेस्टिसाइड्स का नाम, ऑर्गेनोफॉस्फेट से 1-2 पेस्टिसाइड, नियोनिकोटिनाइड्स का 1-2 नाम, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स का 1-2 नाम. सो एटलीस्ट एक ग्रुप से एटलीस्ट 1-2 पेस्टिसाइड नाम तो देना है तुमको. सो यू हैव टू मेंशन ऑल द मेथड्स विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. क्योंकि 20 मार्क्स का है तो यू हैव टू स्टे विद इन 250 वर्ड्स, बट यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग. सब कुछ मेंशन करना है थोड़ा थोड़ा करके. सो दैट इज योर डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल. सी कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर पेस्ट में तो सब कुछ आता है, हम लोग डिजीजेस का वो सब क्यों नहीं कर रहे हैं. अगर वो डिजीज होता, हम लोग यहाँ पर क्या है ना, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोल के सेपरेटली दिया हुआ है सिलेबस में. सो पेस्ट को ब्रॉडली डिफाइन नहीं कर रहे हैं हम लोग, पेस्ट को नैरोली डिफाइन कर रहे हैं. सो वीड भी पेस्ट ही है, लेकिन इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट अलग से सिलेबस में मेंशन है ना. सो यहाँ पर हम लोग नैरोली डिफाइन कर रहे हैं. व्हेन वी से पेस्ट, हियर वी आर स्पेसिफिकली इट मीन्स इंसेक्ट पेस्ट. डिजीजेस, पैथोजेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट अलग से सिलेबस में है ना. सो यहाँ इंसेक्ट पेस्ट की बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट जस्ट गिव द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट का, सॉरी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का तुम्हारा मेंशन कर दो कि हर एक इंडिविजुअल पेस्ट को मानना ज़रूरत नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है. पेस्ट पॉपुलेशन को ETL के नीचे रखना है. देन ब्रीफली एक्सप्लेन एवरी मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स. मैंने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, बहुत सारा भर जाएगा. तो एग्जाम्पल्स तुमको ये कहीं पर भी मिल जाएगा. तुमको TNA के वेबसाइट में या फिर तुमको नॉर्मली इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो यू विल गेट. एंग्रू का मटेरियल यूज़ कर लो, एंग्रू का मटेरियल अच्छा है. सो यू विल गेट प्लेंटी ऑफ नोट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. वहाँ से तुम ये आंसर बना लो. दिस कैन बी आस्क्ड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.